Now in chapter number 1, relation and function, exercise 1.1, question number 9, and it is show that each of the relation R in the set A equal to X such that X belongs to Z and 0 less than equal to X less than equal to 12 given by R is equal to set containing order pair AB where modulus of A minus B is multiple of 4. आपको प्रूव करना है कि भाई ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है एंड फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस. ये जो दोनों है उसमें तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं. 9 क्वेश्चन नंबर 9 है और उसका फर्स्ट बराबर रिलेशन दिया गया है R इज इक्वल टू set of order pair AB such that A minus B is multiple of 4. तो ये जो मॉड्यूलस ऑफ A minus B is multiple of 4 दिया है इसको हम ऐसे लिख देते हैं 4 into n और यहाँ पर लिख देते हैं n belongs to Z. बराबर ऐसे एक्चुअली आप सेट ऑफ होल नंबर्स लिखेंगे तो भी यहाँ पर चलेगा. तो मॉड्यूलस ऑफ A माइनस बी इक्वल टू 4n मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब ये होता है 4 इंटू एनी नंबर. तो फर्स्ट इक्विवेलेंस प्रूव करना है. इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो आप स्टार्ट करो लेट A belongs to capital A is any element. बराबर तो A belongs to capital A is any element. Now for order pair AA तो order pair AA modulus of A minus A is equal to 0 and you can write this one as a 4 into 0 and therefore order pair AA belongs to R and so it is reflexive. So first reflexive is done. Now we prove symmetric and transitive. So for symmetric let order pair AB belongs to R and therefore modulus of A minus B is equal to 4 into n where n belongs to Z. If I interchange place and find modulus of B minus A, then this one is also 4 into n. n belongs to n union singleton 0 लिखना चाहिए या तो फिर आप Z लिख सकते हैं. n union singleton 0 and therefore order pair BA belongs to R and so it is symmetric. चलो तो ये symmetric relation भी है. अब आते हैं transitive. तो for transitive let order pair AB belongs to R and order pair BC belongs to R. Now order pair AB belongs to R. Therefore, modulus of A minus B is equal to 4 into suppose M and modulus of B minus C is equal to 4 into N. अब यहाँ पर हम थोड़ी देर ऐसा समझ लेते हैं कि A is greater than B. तो अगर हम A greater than B समझते हैं तो ये हो जाएगा A minus B is equal to 4M and इसमें हम समझ लेते हैं कि B is greater than C. So it is B minus C is equal to 4 into N. यहाँ पर आपको Mn belongs to Z लिखना चाहिए. तो अगर ये A minus B equal to 4M है and B minus C is equal to 4 into N है, अगर आप ये दोनों को ऐड कर लेंगे, बराबर ये दोनों को आप ऐड कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा A minus C is equal to 4 into M plus N, that is 4M plus 4N and therefore order pair AC belongs to R and order pair AC belongs to R, it means it is transitive. तो हमने प्रूव कर लिया है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, रिलेशन सिमेट्रिक है, रिलेशन ट्रांजिटिव है. इसका मतलब ये हो गया कि इट इज एन
इक्विवेलेंस रिलेशन, बराबर। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो चुका है। अब एक और क्वेश्चन किया गया है हमको, और वो है फाइंड सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। मतलब कि वन के साथ जो भी ऑर्डर पेयर बनाएंगे वो सभी आपको बताना है। इसका मतलब वन का इक्विवेलेंस क्लास, तो वन के साथ कौन से मेंबर्स पेयर बनाएंगे बिटवीन 0 and 12 आपको बोला गया है। तो डिफरेंस क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए ना। तो एक तो रिफ्लेक्सिव है तो डेफिनेटली 1 तो खुद आएगा ही। इसके बाद एक और आएगा 5, देन एक और नंबर आ जाएगा 9, और फिर ओके बस ये 3 नंबर्स होंगे जो 1 के साथ पेयर बनाएंगे। 1 - 1 0 होगा, 1 - 5 वो 4 हो जाएगा, तो वो भी 4 का मल्टीपल है, और 1 - 9 तो 8 हो जाएगा क्योंकि मॉड्यूलस दिया गया है, बराबर। तो ये आपका फर्स्ट हो चुका है 9 का नंबर 1। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, नंबर 2। और नंबर 2 में हमको दिया गया है R इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट A इक्वल टू B। तो फर्स्ट R is equal to AB such that A equal to B. Let A belongs to capital A is any element. ये हमने एक element accept कर लिया। Now for order pair AA condition क्या है, A is equal to A, क्योंकि यहाँ पर A equal to B दिया था ना, तो A equal to A, yeah definitely this one is true, and if this one is true it means order pair AA belongs to R, and so this one is reflexive, बराबर। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो चुका है। अब आपको सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो सिमेट्रिक के लिए लेट ऑर्डर पेयर AB belongs to R, ऑर्डर पेयर AB belongs to R, therefore A equal to B। अब आप A equal to B बोलो या B equal to A बोलो, दोनों एक ही तो चीज है। therefore order pair BA belongs to R, and therefore R is symmetric, बराबर। तो ये हमने सिमेट्रिक प्रूव कर लिया। अब आते हैं ट्रांजिटिव पर। लेट AB बिलोंग्स टू R, और हम नया पेयर B से स्टार्ट करेंगे, BC बिलोंग्स टू R। नाउ AB बिलोंग्स टू R means A equal to B, and BC belongs to R means B equal to C। तो A equal to B and B equal to C, therefore A equal to C, and if A equal to C then order pair AC belongs to R, and therefore the relation is transitive। तो यहाँ पर भी हम प्रूव कर चुके हैं कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है। इट मींस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, बराबर। तो ये एक ऑलरेडी इक्विवेलेंस रिलेशन है, और अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन है तो वन के साथ जितने भी नंबर्स पेयर बनाएंगे वो सब आपको फाइंड करने हैं। तो वन के साथ कौन पेयर बनाएगा, तो चलो थोड़ा इन जनरल देखते हैं, बराबर। मान लो कि वन के साथ ए ने पेयर बनाया, तो अब ये ए कौन होगा वो हम ढूंढ रहे हैं। तो 1A बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब इन्होंने एक कंडीशन सेटिस्फाई की होगी ना, ये कंडीशन सेटिस्फाई की होगी। तो 1A बिलोंग्स टू आर, दैट इज 1 इक्वल टू ए। तो 1 के साथ ऑर्डर पेयर कौन बनाएगा, खुद 1, क्योंकि ए का वैल्यू 1 ही आया। तो 1 के साथ सिर्फ एक ही नंबर ऑर्डर पेयर बना रहा है, और वो है 1 itself। So this one is our number 2 from question number 9। ओके, अब आते हैं नंबर 10 पर, और उसमें दिया गया है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन विच इज, इसमें 5 क्वेश्चन है, तो हम एक एक खत्म करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पे जाते हैं। इसमें बोला है कि एक ऐसा एग्जाम्पल जो दो जो सिमेट्रिक है, बट ना तो ये रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और ना तो ये ट्रांजिटिव होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं लेट सेट ए इज 1 2 3, क्योंकि रिलेशन कोई सेट पे तो डिफाइन करना पड़ेगा ना। तो लेट ए इक्वल टू 1 2 3। अब यहाँ पर हमको ध्यान रखना है रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी नहीं होना चाहिए, बट हाँ ये सिमेट्रिक होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले एक ऑर्डर पेयर लिख देते हैं
1 3। अब सिमेट्रिक बनाना है तो एक दूसरी ऑर्डर पे लिख देते हैं 3 1, उसका फ्लिप, और यहाँ पर इसको क्लोज कर देते हैं। अब देखो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्यों? बिकॉज 1 बिलोंग्स टू ए बट 1 1 is not in R and therefore it is not reflexive। बराबर, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक, हाँ तो आप देख सकते हैं 1 3 बिलोंग्स टू आर है, तो इसका फ्लिप मतलब कि 3 1 वो भी तो बिलोंग्स टू आर है। इसका मतलब ये हमने एक ऐसा रिलेशन दिया जो सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव के लिए आप देख लो, 1 3 बिलोंग्स टू आर, हमने एक 3 से भी पेयर स्टार्ट किया है, 3 1 बिलोंग्स टू आर, बट यहाँ पर 1 1 जो कि आर का मेंबर नहीं है। इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। बराबर, तो ये हमने फर्स्ट खत्म कर दिया, एक ऐसा रिलेशन जो सिर्फ सिमेट्रिक है, ओनली सिमेट्रिक। नाउ नेक्स्ट वन इज ट्रांजिटिव, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। अब सिर्फ ट्रांजिटिव होना चाहिए, ना तो ये रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और ना तो ये सिमेट्रिक होना चाहिए। तो उसके लिए नंबर 2 के लिए भी एक पहले सेट लिख देते हैं जिसके ऊपर हम रिलेशन डिफाइन करेंगे 1 2 3, और फिर इसके ऊपर एक रिलेशन लिख देते हैं। तो देखो ये लिख देते हैं 1 2, फिर एक लिखते हैं 2 3, और इसके बाद लिख देते हैं 1 3। और अब ये सिर्फ ट्रांजिटिव रिलेशन है, क्यों? देखते हैं फिर क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं। तो सबसे पहले तो 1 बिलोंग्स टू ए, तो आपको 1 1 तो आर में नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। बराबर ना, दिस वन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के बारे में देख लेते हैं, 1 2 बिलोंग्स टू आर बट उसका फ्लिप 2 1 नॉट इन आर एंड देयरफॉर नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव देख लेते हैं अब। तो आपका फर्स्ट ऑर्डर पेयर देखो 1 2 बिलोंग्स टू आर, क्या कोई 2 से ऑर्डर पेयर स्टार्ट हो रहा है? यस, 2 से ऑर्डर पेयर स्टार्ट हो रहा है, वो है 2 3। तो 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 3 बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ से आपको क्या देखना चाहिए? ऑर्डर पेयर 1 3, एंड यस ऑर्डर पेयर 1 3 इज ऑलरेडी गिवन, सो बिलोंग्स टू आर। अब सेकेंड ऑर्डर पेयर देखते हैं 2 3, क्या कोई ऑर्डर पेयर है जो 3 से स्टार्ट हो रही है? नहीं। नेक्स्ट में देखते हैं ऑर्डर पेयर 1 3, तो 3 से ऑर्डर पेयर कोई स्टार्ट ही नहीं हो रही है, मीन्स सिर्फ एक हमारे पास ऑर्डर पेयर थी 1 2, और फिर वो 2 से स्टार्ट हो रही थी, बाकी तो कोई तकलीफ नहीं था। एंड देयरफॉर दिस वन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये जो रिलेशन था वो ओनली ट्रांजिटिव है, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है ना तो ये सिमेट्रिक है। नेक्स्ट पे जाते हैं नंबर 3। अब नंबर 3 में आपको बोला गया है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो आपको एक ऐसा रिलेशन देना है जो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, बट ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो फिर स्टार्ट करते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 एंड 3, और फिर रिलेशन लिखना है जो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 लिख दिया, 2 2 लिख दिया, 3 3, इतना तो लिखना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि रिफ्लेक्सिव मतलब 1 1 होना चाहिए, 2 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम थोड़ा पैर देख लेते हैं कि कौन सा पैर हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से एक ऑर्डर पेयर एंटर करते हैं, वो है 1 3। बराबर, अगर हम 1 3 ऑर्डर पेयर एंटर करेंगे तो हमको 3 1 भी करना पड़ेगा, क्यों?
क्योंकि सिमेट्रिक भी तो बनाना है। तो 1 3 3 1। अब इसको ट्रांजिटिव नहीं बनाना है, बराबर, ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम 3 से एक ऑर्डर पे स्टार्ट करते हैं और मान लो कि वो 3 2 है। तो अगर हम 3 2 ऑर्डर पेयर लिखेंगे तो हमको सिमेट्रिक बनाने के लिए 2 3 भी लिखना पड़ेगा, और इधर इसको क्लोज कर लेते हैं। अब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ऑर्डर पेयर ए बिलोंग्स टू आर एंड देयरफॉर रिफ्लेक्सिव। चलो रिफ्लेक्सिव है वो दिखा दिया। अब सिमेट्रिक, तो यहाँ पर आप देखो 1 1 का फ्लिप, 2 2 का फ्लिप, 3 3 का फ्लिप, तो वो तो सेम रहेंगे। 1 3 के फ्लिप 3 1 है, 3 2 का फ्लिप 2 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर, जितनी भी ऑर्डर पेयर्स हैं उनका हर एक का फ्लिप रिलेशन में है। सो दिस वन इज सिमेट्रिक ऑल्सो। अब ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, ऐसा क्यों बोला है हमने कि ये ट्रांजिटिव नहीं है? क्योंकि इसका रीजन है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है 1 3, या ये है 1 3 और यहाँ पर है 3 2। तो 1 3 बिलोंग्स टू आर, एक और पेयर है जो 3 से स्टार्ट हो रही है, 3 2 बिलोंग्स टू आर, बट 1 2, ये जो ऑर्डर पेयर 1 2 है वो आर का मेंबर नहीं है, एंड सो दिस वन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये हमने एक ऐसा रिलेशन दिया है जो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक है, बट ये ट्रांजिटिव नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नंबर 4 में उन्होंने बोला है रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, रिलेशन ट्रांजिटिव होना चाहिए, बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। ओके, let A is again 1 2 3, this one is number 4। रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो बनाना है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 1, फिर लिख देते हैं 2 2, फिर एक और लिख देते हैं 3 3। अब ये रिफ्लेक्सिव हो चुका है, बट ये सिमेट्रिक भी है। तो सिमेट्रिक आपको नहीं चाहिए, तो हम एक और एक्स्ट्रा लिख देते हैं 1 2, और फिर इधर इसको स्टॉप कर देते हैं। तो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल A with itself belongs to R and therefore it is reflexive। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो चुका है, बराबर। फिर सिमेट्रिक के लिए आप देखो 1 2 बिलोंग्स टू R, बट 2 1 ये हमने ऑर्डर पे जानबूझ के अंदर लिखा ही नहीं, बराबर। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। और थर्ड ट्रांजिटिव, तो 1 1 बिलोंग्स टू आर, बराबर। 1 1 बिलोंग्स टू आर, 1 से कोई ऑर्डर पे स्टार्ट हो रही है, हाँ, एक तो 1 इटसेल्फ और एक और है 1 2, 1 2 बिलोंग्स टू आर। तो अगर हम यहाँ देखेंगे 1 1 बिलोंग्स टू आर एंड 1 1 बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ से तो 1 1 ही मिलेगा, बिलोंग्स टू आर। यहाँ पर देखते हैं 1 1 बिलोंग्स टू आर एंड 1 2 बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1 2, और वो भी तो हम ऑलरेडी अंदर लिख ही चुके हैं। तो यहाँ पर भी जितनी भी ऑर्डर पेयर हैं उसमें कहीं पर भी आपको ट्रांजिटिव में तकलीफ नहीं आएगी, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो ये ऑलरेडी हमारा नंबर 4 खत्म हो चुका है। हमको ऐसा रिलेशन चाहिए था जो सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए बट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज नंबर 5, एंड इन नंबर 5 सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, बट रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। ओके, सो A is equal to set 1 2 3, और रिलेशन, अब इन्होंने बोला है कि आपको रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं बनाना है,
ओके, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ना 1 1 और फिर 2 2, 3 3 नहीं लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, और फिर यहाँ ही इसको क्लोज कर लेते हैं। So 3 belongs to set A, but 3 3 is not in R and therefore not reflexive. तो ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें आपको क्लियरली रिफ्लेक्सिव का मतलब पता होना चाहिए, तो आप इसका एग्जाम्पल दे पाएंगे। अब 1 1 बिलोंग्स टू R है तो उसका फ्लिप क्या होगा, वो खुद ही होगा 1 1 बिलोंग्स टू R, therefore symmetric. Then 2 2 belongs to R implies उसका फ्लिप भी तो वही होगा, तो सिमेट्रिक में तो इश्यू नहीं आया। ट्रांजिटिव भी देख सकते हैं आप, 1 1 बिलोंग्स टू R तो 1 से जो पेयर स्टार्ट होती है वो खुद 1 1 ही है। 2 2 बिलोंग्स टू R तो 2 से स्टार्ट होती है ऐसी पेयर, वो खुद ही है, तो ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, बराबर। सो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव बट इट इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बोथ। सो नाउ नेक्स्ट पे देखते हैं, चूंकि हमारे लिए अब रहेगा नंबर 11, and 11 is show that the relation R in the set A of points in a plane given by R is equal to set of order pairs PQ, distance of point P from the origin is same as the distance of point Q from the origin is an equivalence relation। चलो पहले इक्विवेलेंस प्रूव कर लेते हैं, बाद में आगे का देखेंगे। तो ये जो आपको रिलेशन दिया गया है ना, इसको पहले तो हम थोड़ा सिंबल में लिख देते हैं क्योंकि ये इतना बड़ा सेंटेंस ना लिखना पड़े। अब यहाँ पर क्या बोला है, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन, तो ओरिजिन से जो पॉइंट का डिस्टेंस होता है इसको हम OP लिख देते हैं। O मतलब ओरिजिन है, तो OP मीन्स ओरिजिन से P का डिस्टेंस is same as, that is equal to distance of Q from origin। तो ये हमारी कंडीशन है, बराबर, where P and Q are points in a plane। First let P belongs to set A is given, so let P belongs to A। now for order pair PP, तो कंडीशन क्या होगी, OP, और यहाँ पर भी हम लिखेंगे OP, तो OP इक्वल टू OP, डेफिनेटली इट इज ट्रू, क्योंकि एक ही पॉइंट का आप ओरिजिन से डिस्टेंस ले रहे हो तो वो तो इक्वल ही होगा। therefore PP belongs to R and therefore this one is reflexive, बराबर, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं, लेट ऑर्डर पेयर PQ belongs to R। अब ऑर्डर पेयर PQ belongs to R है, इसका मतलब क्या, ओरिजिन से P का डिस्टेंस इट्स सेम एज ओरिजिन से Q का डिस्टेंस, वो दोनों इक्वल हैं, तो आप OP इक्वल टू OQ बोलो या OQ इज इक्वल टू OP, वो दोनों एक ही है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर पेयर QP belongs to R and therefore it is symmetric, बराबर। so this relation is symmetric also। now थर्ड ट्रांजिटिव पे आते हैं, let PQ belongs to R and QR। अब ये थोड़े सिंबल समझना कि ये कैपिटल R जो पॉइंट के लिए है और ये रिलेशन का सिंबल है। हाँ, तो ऑर्डर पेयर PQ belongs to R, that is OP is equal to OQ, and order pair QR belongs to R, that is distance of Q from origin is same as distance of R from origin, so OP equal to OQ and OQ equal to OR, that is OP is equal to OR, and therefore
PR belongs to R, and therefore R is transitive. So we have proved the relation is reflexive, it is symmetric, and it is transitive, and therefore this relation is equivalence. This relation is equivalence relation. अब यहाँ पर हमको क्वेश्चन दिया गया है, further show that the set of all points related to point P, now P is not same as origin, it's circle passing through P with origin as a center. Okay, तो सबसे पहले अब एक पॉइंट दिया गया है हमको, P belongs to A, तो ये A है वो सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन है। अब हम मान लेते हैं कि भाई O से P का कुछ डिस्टेंस तो होगा ना, तो वो डिस्टेंस को ही हम R लिख देते हैं, बराबर। और डेफिनेटली ये 0 तो नहीं होगा, क्योंकि हमको बोला गया है ना ओरिजिन एंड P आर डिफरेंट पॉइंट्स, तो OP इक्वल टू R। अब P से जो भी रिलेट करेंगे वो सभी पॉइंट सर्कल बनाएंगे, बराबर। तो देखते हैं, एक पॉइंट एक्सेप्ट करते हैं, लेट PQ बिलोंग्स टू R, मतलब कि एक पॉइंट है जो P के साथ रिलेशन बना रहा है, तो PQ बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या हुआ, OP इज इक्वल टू OQ, बट OP तो हमने सपोज किया था ना R, तो R इज इक्वल टू OQ। अब R इज इक्वल टू OQ, अब ये थोड़ा यहाँ पर लिख देते हैं, या अब ये यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ा, तो OQ इज इक्वल टू R। अब आप देखो ये Q जो पॉइंट है वो 2 डायमेंशनल का पॉइंट होगा, तो मान लो ये x, y है। अब OQ इज इक्वल टू R, therefore OQ square is equal to R square, and therefore x minus 0 square plus y minus 0 square is equal to R square। हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया, और आप जानते हैं ये किसका इक्वेशन है, सर्कल का है, बराबर, विथ सेंटर 0 0 एंड रेडियस R। अब डेफिनेटली P तो इसका पॉइंट होगा ही, बराबर, बिकॉज OP is also R, so it's circle with center 0 0 and passing through P. Okay, so this one is our number 11. Now next, number 12, show that relation are defined on set A of all triangles। यहाँ पर set A दिया गया है, set of all triangles, and relation is defined by order pair T1 T2 where T1 is similar to T2। दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनका जो पेयर है वो आपको रिलेशन में लिखना है। तो सबसे पहले R लिख देते हैं वापस, T1 T2 such that T1 is similar to triangle 2 for reflexive। let, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है आपको, let T1 belongs to A for T1 with T1 itself। तो T1 is similar to T1, ट्रायंगल खुद को तो सिमिलर होगा ही, बराबर, तो T1 is similar to T1, this one is true, and if it is true then we can say order pair T1 with T1 itself belongs to R,
एंड सो दिस वन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बराबर। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो चुका है। अब आते हैं सिमेट्रिक पर। तो लेट T1 with T2 belongs to R. T1 T2 belongs to R. It means T1 is similar to triangle 2. अब T1 is similar to triangle 2, या तो आप बोलो triangle 2 is similar to triangle 1। ये दोनों का मतलब तो एक ही होता है। तो ऑर्डर पर T2 T1 belongs to R and therefore R is symmetric relation, बराबर। ये symmetric relation भी है। अब थर्ड पे आते हैं, ट्रांजिटिव। लेट T1 T2 belongs to R and T2 T3 belongs to R, means T1 is similar to T2 and T2 is similar to T3। तो T1 is similar to T2 and T2 is similar to T3. It means T1 is similar to T3 and therefore order pair T1 T3 belongs to R and so it is transitive। तो आपने प्रूव कर दिया है कि आपका रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है एंड देयरफॉर इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, बराबर। ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो चुका है। अब यहाँ पर आपको और भी आगे क्वेश्चन किया है, कंसीडर 3 triangles, triangle 1 with sides 3 4 5, triangle 2 with sides 5 12 and 13, and triangle 3 with sides 6 8 and 10। which triangles among ट्राइंगल 1, ट्राइंगल 2 एंड ट्राइंगल 3 आर रिलेटेड? इसमें से कौन से ट्राइंगल एक दूसरे के साथ रिलेट करेंगे ये आपको बताना है, बराबर। तो अब सिमिलर जो ट्राइंगल होते हैं उसमें साइड का जो रेशियो होता है, साइड लेंथ का रेशियो होता है वो इक्वल होगा, बराबर। तो हम ट्राइंगल 1 देख लेते हैं। जो ट्राइंगल 1 है उसमें आपको जो साइड्स दिया है, साइड लेंथ वो 3 4 एंड 5 है। ट्राइंगल 2 जो दिया गया है इसमें जो साइड्स की लेंथ है वो दिया है 5 12 एंड 13। और ट्राइंगल 3 में जो साइड्स की लेंथ है वो दिया गया है 6 8 एंड 10। जो दो ट्राइंगल में साइड लेंथ का रेशियो इक्वल होगा वो दो सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2 में 3/5 4/12 ये तो रेशियो सेम नहीं है। 3/6 4/8 5/10, हाँ ये रेशियो सेम हो जाएगा। 3/6 इज सेम एज 4/8 इज सेम एज 5/10, तो ये रेशियो इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइंगल 1 इज रिलेटेड टू ट्राइंगल 3। ये हम रिलेशन का सिंबल ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, बराबर। कि अगर दो एक पेयर है ए बी बिलोंग्स टू आर तो इसको हम ए इज रिलेटेड टू बी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा नंबर 12 था। नेक्स्ट पे देखते हैं, नंबर 13 होगा, बराबर। एंड नंबर 13 इज show that the relation are defined in a set A of polygons as R equal to P1 P2, order pair P1 P2, condition is P1 and P2 have same number of sides। तो number 13 R is equal to P1 P2, condition है P1 and P2 have same number of sides, P1 and P2 have
सेम नंबर ऑफ साइड्स। आपको प्रूव करना है ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस है। तो फॉर दैट लेट P1 belongs to A. A is set of polygons. Now for P1 with P1 itself, तो P1 and P1 have same number of sides, बराबर। पॉलीगॉन 1 है, अब उसी को अगर उसमें जितनी साइड्स है वही तो आप वापस P1 ही ले रहे हैं, तो P1 and P1 have same number of sides is true, and if this one is true then we can say P1 with P1 belongs to R, and so it is a reflexive relation. Now for symmetric, so let order pair P1 P2 belongs to R, and it means P1 and P2 have same number of sides, ये दोनों में number of sides same है। तो आप P1 and P2 में same number of sides है ऐसा बोलो, या आप ऐसे बोलो P2 and P1 have same number of sides, दोनों का मतलब तो वही होगा, और इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर पेयर P2 P1 belongs to R, and so it is symmetric relation। अब आपको प्रूव करना है ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो फॉर ट्रांजिटिव लेट P1 P2 belongs to R and P2 P3 belongs to R, therefore P1 and P2 have same number of sides, and P2 and P3 have same number of sides। तो आपने क्या लिखा है, P1 and P2 में नंबर ऑफ साइड सेम है, P2 and P3 में नंबर ऑफ साइड सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि P1 and P3 have same number of sides, and it means order pair P1 P3 belongs to R, so it is transitive relation, and if the relation is reflexive, symmetric and transitive, then we say this one is equivalence relation, बराबर। तो हमने ये तो प्रूव कर लिया कि भाई ये रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब आपको साथ में ये भी प्रूव करना है कुछ कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स in A related to the right angle triangle T with sides 3, 4 and 5। चलो तो उसके लिए अब चले जाते हैं। यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल दिया गया है, ट्राइंगल है, और बोला गया है ये जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी एक साइड 3, एक साइड का लेंथ 4 और एक साइड का 5 लेंथ है। और इनका क्वेश्चन है ये ट्राइंगल के साथ जो भी पेयर बनाएंगे वो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स क्या है वो आप बताओ। तो हम ऐसे लिख देते हैं, लेट मान लो कि टी के साथ कोई पॉलीगॉन है, इसने पेयर बनाया, टीपी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ नंबर ऑफ साइड्स इन टी
it's same as number of sides in P। अब ये T क्या था, ट्राइंगल था, तो इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी, 3। तो 3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इन P। तो अब P क्या है, एक ऐसा पॉलीगॉन जिसमें नंबर ऑफ साइड्स 3 है, तो वो क्या होगा, ट्राइंगल होगा, बराबर। एंड सो P बिलोंग्स टू सेट ऑफ ट्राइंगल्स, बराबर। तो यहां से हमको क्या मिला कि जो टी के साथ रिलेट करेंगे वो क्या होंगे, ट्राइंगल्स, बराबर। इसमें कहीं पर भी साइड लेंथ का यूज नहीं था, हमको तो नंबर ऑफ साइड्स में इंटरेस्ट था। सो दिस वन इज अवर नंबर 13। नाउ मूविंग ऑन नंबर 14। और 14 में आपको बोला गया है L be the set of all lines in xy plane, R be the relation in L defined as R is equal to order pair of L1 and L2 with condition L1 is parallel to L2, show that R is an equivalence relation. So first let L1 belongs to L is एनी एलिमेंट, हमने कोई एक लाइन एक्सेप्ट की है L1। नाउ फॉर L1 विथ इटसेल्फ, L1 का L1 के साथ पैर चेक करना है, तो L1 इज पैरेलल टू L1, दिस वन इज ट्रू, एंड इफ दिस वन इज ट्रू देन वी कैन से order pair L1 L1 belongs to R and therefore it is रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बराबर। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ऐसा हम प्रूव कर चुके हैं। अब सिमेट्रिक प्रूव करते हैं। लेट लाइन 1 एंड लाइन 2 का ऑर्डर पेयर आर का मेंबर है, इसका मतलब लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 2, और वी कैन से लाइन 2 इज पैरेलल टू लाइन 1 एंड देयरफॉर लाइन 2 लाइन 1 का ऑर्डर पेयर रिलेशन का मेंबर होगा, और अगर ये रिलेशन का मेंबर है तो रिलेशन क्या हो जाएगा, तो इट इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड वन फॉर ट्रांजिटिव, तो फॉर ट्रांजिटिव लेट L1 L2 belongs to R and L2 L3 belongs to R, that is L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L3. Now L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L3, it means L1 parallel to L3, and therefore L1 L3 belongs to R, and so we can say the relation is transitive. Now relation is reflexive, it is symmetric and transitive, and so the relation is, therefore it is an equivalence relation। चलो, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब क्या प्रूव करना है, तो फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू 2x+4, मतलब एक लाइन आपको y इक्वल टू 2x+4 दिया गया है, उसके साथ जितनी भी लाइंस रिलेट करेगी वो सब आपको फाइंड करनी है। तो मान लो हम ये बोल देते हैं कि भाई ये जो लाइन दिया गया है ना, इसको हम L बोल देते हैं, y इज इक्वल टू 2x+4, और उसके साथ जो भी लाइन रिलेट करेगी वो हम फाइंड कर लेते हैं वो क्या होगी। तो लेट मान लो कि वो जो लाइन है वो M है, तो ML बिलोंग्स टू R। अब ML बिलोंग्स टू R इसका मतलब क्या, M is parallel to L, M is parallel to L, it means M, L का इक्वेशन तो हमको पता है ना,
y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 एंड सो जो आपकी लाइन है m उसका इक्वेशन क्या होगा, तो ये लाइन होगी इसी को पैरेलल, तो पैरेलल लाइन का इक्वेशन y is equal to 2x plus c where c belongs to r। अब यहाँ पर c belongs to r क्यों लिखा, क्योंकि हमने बोला है लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। अब लाइन पैरेलल टू इटसेल्फ में अगर आपको डाउट है तो हम पैरेलल का डेफिनेशन कुछ इस हिसाब से सोच रहे हैं कि अगर दो लाइन के बीच का डिस्टेंस ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, जैसे कि ये दो लाइन है, आप कहीं पर भी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने का ट्राई करेंगे तो वो ऑलवेज इक्वल होगा, तो इनको हम पैरेलल समझते हैं। हाँ, ऐसी डेफिनेशन का यूज करके हम पैरेलल सोच रहे हैं। तो अगर आपकी लाइन, दोनों लाइन आपने सेम लिया है तो डिस्टेंस ऑलवेज सेम रहेगा ना, डिस्टेंस ऑलवेज 0 रहेगा, तो इस हिसाब से हम बोल रहे हैं L1 इज पैरेलल टू L1, बराबर। आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के हिसाब से सोचेंगे तो आप बोलेंगे L1 पैरेलल लाइन का मतलब तो हम ऐसा करते हैं कि दे हैव नो कॉमन पॉइंट, बट हम डिस्टेंस के हिसाब से डेफिनेशन समझ के ये L1 पैरेलल टू L1 है ऐसा बोल रहे हैं। ओके, तो अगर वो किसी के दिमाग में ऐसा आता है कि भाई L1 पैरेलल टू L1 कहाँ से बोल दिया आपने, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। ओके, तो उस हिसाब से आपको ये पैरेलल करवाया है। यस, तो अब देखते हैं आगे और कौन से क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज में। नाउ नंबर 15 एंड नंबर 16, जो कि let R be the relation in the set containing 1 2 3 4 given by R equal to order pair 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 एंड 3 2। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आपको जो एलिमेंट्स दिए गए हैं, हम 15 की बात कर रहे हैं अभी। सो 1 बिलोंग्स टू सेट ए, तो आपको 1 1 अंदर दिख रहा है। अगर यहाँ पर 2 है, एमसीक्यू है, तो हम डायरेक्टली थोड़ा लिख रहे हैं। 2 2 भी है, यहाँ पर 1 1 भी प्रेजेंट है, यहाँ पर 3 3 भी प्रेजेंट है, यहाँ पर 4 4 भी प्रेजेंट है। इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है कंफर्म। अब अगर ये रिफ्लेक्सिव है, इसके बाद हम सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है, बराबर, फर्स्ट ऑर्डर पे ये है 1 2, और आप देख सकते हो 1 2 तो यहाँ पर प्रेजेंट है बट 2 1 नहीं है, बराबर। तो 1 2 बिलोंग्स टू R बट 2 1 is not in R, so it is reflexive। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। अब क्या लगता है, क्या ये ट्रांजिटिव होगा? तो ट्रांजिटिव के लिए अगर हम सभी पेयर्स देख लेते हैं तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर हम हर एक पेयर को चेक करते हैं, वो हर एक पेयर आपको चेक करना पड़ेगा, बराबर। तो एमसीक्यू है तो मैं हर एक पेयर तो नहीं चेक कर रहा हूँ, बट यहाँ पर कोई ऑर्डर पेयर को मुझे नहीं लगता कोई तकलीफ है। सो यस, दिस वन इज रिफ्लेक्सिव, इट इज ट्रांजिटिव, but it is not symmetric, so this one is actually correct answer। ये जो है ये correct answer है। and now one more of this one, and it is let R be the relation in the set N given by R is equal to order pair AB where A equal to B minus 2 and B is greater than 6। now B is greater than 6 तो ये तो हो ही नहीं सकता, बराबर। और आपके जो दो नंबर है ना उनमें डिफरेंस कितना है, तो A इक्वल टू B माइनस 2, तो डिफरेंस आपका जो A है ना वो ग्रेटर है, क्योंकि B माइनस 2
b में से 2 माइनस करने के बाद a ग्रेटर हो जाएगा बिकॉज a माइनस बी इक्वल टू 2 दैट इज a प्लस 2। तो यहाँ से अगर हम ऑर्डर पेयर देखते हैं तो a स्मॉल नंबर रहेगा। हाँ, तो 6,8, this one is correct option. Okay, so this one is last of exercise 1.1. अब जो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा वो फंक्शन से स्टार्ट होगा, और हमारा जो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें मेन आपको थोड़ा फंक्शन पे फोकस करना है। तो अब नेक्स्ट टाइम से हम फंक्शन देखेंगे। ओके, आज के लिए अभी ये यहाँ तक इतना ही।